हर साल आप संगत दे सहयोग सदका नगर ठरवा माजरा विखे 3 रोजा गुरमत दीवान आयोजित किए जाते हैं, जिन्हां दी आरंभता शुरुआत बाबा सुच्चा सिंह जी जवद्दी टकसाल उन्हां वल्लों कीती गई। पिछले कई सालां तो निरंतर हर साल सिख पंथ दे नामवार कीर्तनीय प्रचारक ढाडी साहबान आप संगत दे दर्शन दीदारे कर रहे हैं। इस वरे दे गुरमत दीवान दा ये पहला दिन है। अमृत वेले गुरुद्वारा साहिब जी विखे वाहिगुरु गुरु मंत्र दा सिमरन गायन करके रसना तो जाप करके संगत ने कीता और हुण खुले पंडाल विच आप जी हाजरी भर रहे। भावां ये गुरमत दीवान गुरु नानक साहेब महाराज जी दे 550 साला आगमन गुरपुरब नूं समर्पित ने और फिर भी अज सबबी कुदरती तौर ते दीवान भी पहला है और 7वें पातशाह सतगुरु गुरु खार राय साहब जी उन्हां दा अज आगमन गुरपुरब है। आप संगत नूं हजूर दे आगमन पुरब दी बहुत बहुत वधाई होवे। सन्मानयोग जवद्दी टकसाल दे विद्यार्थियों ने बच्चियां ने कीर्तन दी आरंभता की। भाई बलकार सिंह जी उन्होंने हजूर दी अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण कराया, जो तिन्ने दीवान इत्ते हाजरी भरन। भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी ऊना साहब वाले उन्होंने असानू कीर्तन सरवण कराया। दास तो बाद कवि जन, फिर भाई कुलदीप सिंह जी हजूरी कीर्तनीय, उस तो बाद ढाडी साहब जे बाबा अमीर सिंह पहुंच गए आप जी दे दर्शन करने। आओ आप जी दे सन्मुख कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ पा सकां। भाई साहब जी ने जो कीर्तन सरवण कराया, मैं उसे नूं आधार बना के आप जी दे सन्मुख बेनती करनी है। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, प्यार अदब नाल उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सत संगत विच बैठे खां, गुरबाणी दा कीर्तन आपां सारियां ने सरवण कीता है। तुसी जो हर साल इस समागम विच हाजरी भरदे हो, इसे ज्यादातर गुरमत दीवान विच कीर्तन दी प्रधानता है। भावें सानू शब्द समझ अर्थ नहीं भी पै रहे, पर गाया होया शब्द साडे अंदर असर जरूर करेगा। फिर मैं शब्द रिपीट करांगा।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਖੋ, ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਪਰ ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਧੰਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਤਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਪੜਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੇ ਖਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ 4ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੈਗੁਰੂ, ਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋਂ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-1 2-2 ਤੁਕ ਲੈਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ।
इत्थे जी दा अर्थ है जिंद दा जीव, ते बिरथा दा लफ्जी अर्थ हुंदा विथ्या। एक बिरथा दा अर्थ हुंदा बेकार चला जाना। ये शब्द नूं ध्यान दिया। जन्म बिरथा जात रंग माया कै। इत्थे महाराज कहंदे जी की बिरथा होए। इत्थे बिरथा दा अर्थ विथ्या। इहदा मतलब अपने अंदर दी वेदना, अपने अंदर दा दुख, जो साडे अंदर पीड़ा है, जिहड़ी असीं किसे नूं नहीं दस सकदे। महाराज कहंदे जी की बिरथा होए, जिहड़ी तेरे अंदर दी विथ्या है, तेरे अंदर दा रोग है, जिहड़ी तेरे अंदर दी बीमारी है, तू एक काम कर, तू अरदास करके वो बिरथा अपने गुरु नूं दस दे। फिर बिनती, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। किवें कर? छोड़ सियाणप सगल। जिन्नियां तेरे कोल सियाणपां ने, अकल है, जो कुछ भी तू वरतने वो सब कुछ छड़ दे ते अरदास कर लग्या अपना तन मन अपने गुरु नूं समर्पण कर दे। ये अरदास बेटा। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। छोड़ सियाणप सगल मन तन, अर्प धर अपना आप भेट कर। ये लफ्जी अर्थ हो। तीसरा शब्द सी धन तन पिता। ये लफ्जी अर्थ सौखे कि उस पिता नूं धनता जो किया। धन तन कुल, उस कुल नूं बहुत सन्मान दिता। धन धन सो जननी, जननी दा अर्थ जन्म देन वाली। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। जिसने गुरु नूं जन्म दिता वो मां धनता जो। अगे महाराज कहने धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। गुरु धनता जोग जिन्हें बड़ी भगती की, बहुत सिमरन किया। ते अगली गल, आप तरिया। गुरु सिमरन करके वैगुरु जी विच अभेद आप तर गया। जिन्नी डिठा, जिन्हां ने गुरु नूं देखिया तकिया। जिन्नी डिठा तिन्हां लै छड़ाए। जिन्हां ने उस गुरु दे दीदार कीते, सतगुरु ने उन्हां नूं जमा ते विकारां तो सदा लई छड़ा दिता। ये भाई साहब ने तीजा शब्द पढ़िया। चौथा सी कि सतगुर दया करे सुख दाता। ये शब्द शुरू हुंदा है खंभ अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। असी अखां तो अन्ने हां, सानू कुछ नजर नहीं आउंदा। इत्थे दो शब्द ने, बिख है। बिख दा अर्थ हुंदा वैसे जहर। साडा अंदर जहर दे विच रत्या पिया। अन्नियां नूं समझ ही नहीं पैंदी पई कि ये अमृत है कि जहर है। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। चाली दा वैसे लफ्जी अर्थ हुंदा चाल चलना। उंज दे अर्थ ने गुरु दी मर्यादा, गुरु दी दसी कोई रहत, गुरु दे दसे कोई तरीके। असी अन्ने खां, जहर विच असी लोपत खां, ते सानू किवें समझ पाए सी गुरु दी दित्ती कोई चाल ते किवें चलीए, जां सिद्धे अर्जी गुरु दे दसे राह ते किवें तुरीए। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। ते महाराज कहने सतगुर दया करे सुख दाता। आप ही उत्तर दिता कि सुखां दा दाता सतगुरु मेहर करे। हम लावे आपन पाली। ये शब्द पाली, पल्ला ते लड़ खास करके ये बाणी च सारे शब्द आया जी। पाली, पल्ला ते लड़, इन्हां दा अर्थ तिन्हां दा इको। अंचल भी आया, अंचल अर्थ इको ही, पल्ला पकड़ाना। जिवें असीं पाठ करने आ, महाराज ने आप लिए लड़ लाए दर दरवेश, ओदा अर्थ भी पल्ली पाली। जिवें असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पाठ करने खां, हजूर ने फरमाया कि उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया, हब किज त्यागी, हब्बे साख उड़ावे डिठै तो पल्ले टैंडे लागी। इहदा अर्थ भी रूहानी है। इत्थे पल्ला आ गया, उत्थे पाली आया। अंचल गह कै साधका, इहदा अर्थ है लड़ पकड़ना, पल्ला पकड़ना, कि ओदे पिछे तुरना। महाराज कहते सतगुर दया करे सुखदाता, खम लावे आपन पाली। अगे महाराज उत्तर दिंदे
किवें पल्ला पकड़िए। हजूर कहंदे ने गुरसिख मीत चलो गुर चाल। ए मित्र गुरसिख गुरु दी दसी कोई चाल ते चल। ते अगला पुछदा महाराज यही ते मैं पुछना पिया क्यों चल गुर चाली। ते तुसी भी ये कह रहे हो कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ते अगे फिर सतगुरु उत्तर देंदे आ कि याद रख जो गुर कहे सोई भल मन। जो गुरु कहंदा है ओनू सत बचन करके मन ले। भल मानो दा अर्थ बड़ा कमाल दा। मन विच कोई फुरने ना बनाई। जो कह रहा ओदे प्रति तू कोई अंदर अपनी खौमे इगो ना लेके बह जे। जो कहे जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। जिवें गुरु कहंदा है ओनू सत बचन करके मन ले। गुरमुखो ते असी 40-45 मिनटां च 4 शब्द सुने भाई साहब जी तो। विषय ने 3 इस कीर्तन च। एक अरदास, दूसरा गुरु दे आगमन दा, ते तीसरा सतगुरु सामने लड़ पकड़न वास्ते बेनती। 3 विषय ने इस कीर्तन। मैं तिन्ना संबंधी थोड़ी थोड़ी बेनती करांगा ते इस करके मैं टाइम लिया के मैं रोज यत्न करांगा टाइम कढ़ के, क्योंकि पिंड दी संगत भी सारे सज्जन प्रेमी कहंदे ने कि तुसी जरूर टाइम लाया करो। ते मेरे मन च हुंदा भी चलो बाहरों आए समझन ने आपां इन्हां नूं सुनने, पर फिर भी मैं आप जी दे इस बख्शीश दी कदर करदियां होया 3 दिन यत्न करांगा आप जी दे जितना को टाइम मिले वो दर्शन कर। पहला शब्द है अरदास नाल संबंधित 2 शब्द। वो शब्द सन फिर मैं रिपीट कर लगा। प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साईं। ते दूसरा शब्द सी जी की बिरता होए सो गुर पै अरदास कर। ये 2 शब्द पहले अरदास दे ने। मैनू याद है एक बार मैं ये कथा इस जगह ते कर भी चुका, पर अज ये रिपीट करांगा। चलो दोबारा ज़हन विच ताजगी आ गई। असीं सवेरे शाम गुरु चरनां विच अरदास करने। सिख इकल्लियां भी अरदास करदा ते सिख संगती रूप विच भी अरदास कर सकदा। फिर बिनती जमाती भी अरदास करने, असीं जाति भी अरदास करने। जमाती दा अर्थ है जदों असीं संगत विच हां ते उदों अरदास करने आ, ते जाति दा अर्थ है निजी जदों बिल्कुल असीं इकल्ले नितनेम करने आ उसों उदों भी अरदास करने। कुछ कुछ बेनतियां ने कि जिन्ने भी रब नूं मनण वालियां धर्म ने जां कह लो आस्तिक बिरती वाले, इनू कला सिखां नाल जोड़ के नहीं, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई ने, चाहे असी सिख हां, हर आस्तिक धर्म ये कहंदा है कि जीव पुकार करदा है ते रब दे दर ते सुनी जांदी है। इसे करके हिंदू वीर भी परमात्मा दे सन्मुख अरदास करदे, मुसलमान दुआ कहंदे आ, ते ईसाई वीर जिहड़े ने वो प्रेर शब्द वरदे आ। पर तिन्नां दा भाव इक्को ही असीं अरदास कहने आ कि मालिक दे सन्मुख अपने वल्लों अरदास कर। करदे ना सुनी जाए ते बंदे गुरुद्वारा छड़ चंदे। जिन्ने विचारे कीती ओदी शामत आज नहीं, बाबे दे पल्ली कुछ नहीं, साडी तां सुनी नहीं गई। ते मैं तुहानूं एक बेनती करांगा, मैं गुरु ग्रंथ साहिब च पाठ करदियां मेरे कन्न पिछले बार भी मैं कहा सी ये गल पई जी, इन्नी सिखां ने अरदास कीती, वो बच्चा एक डिग गया सी पिछली वारी है ना बोर च, सुनी नहीं गई। मेरे मन च उदों आया नहीं वो बंदिया ये भी शब्द कह के तू रब दी बेअंतता नूं चैलेंज करना। गुरु साहब कहंदे तेरा काम है पुकारना, ओनू भाएगा ते सुन लेगा, नहीं भाएगा तेरा जोर कोई नहीं चलता। तू अपनी ताकत चलानी चाहना, जोर नहीं चलता। जिवें असीं एक पाठ करने दोए कर जोड़ करूं अरदास, ये लफ्जी अर्थ ने मैं दोनों हाथ जोड़ के अरदास करना। ये तो होगी बेनती। अगली तुक पल्ले बनने वाली है, दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावै तां
आना है रास। इत्थे ते महाराज क्या ही नहीं विच सुनी जाऊगी। महाराज कहते तुद भावै, मैं दोनों हथ जोड़ के अर्जी ला दी, मैं अपनी एप्लीकेशन ला दी, तुद भावै तां आना है रास। रास दा अर्थ कामयाबी। मैं अपने वालों कह दिता जे तेनू भाएगा चंगा लगेगा ते सिरे लग जाएगी, जे नहीं तेनू भांदा ते मैनू सबर दी दात दे दे। मैं इस करके बेनती करा जे कि भी अरदास सुनी नहीं गई। महाराज ने पहली मैं बेनती आपको करा कि अरदास दे लफ्जी अर्थ मैं एक बारी कीते सन, पर मैं जो फिर रिपीट करा। एक तां सवेरे भी जदों अरदास हो रही सी ना जी, मैं आपको बेनती करा ये रोज असी करना। ये गल याद रखियो, सुखमनी साहब दे उस पदे विच से किते नहीं आया। सवेरे जदों अरदास की करना से शब्द पै रहे से तेख है। तू ठाकुर तू पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तू मात पिता हम बारिक। इनू बारिक नहीं पढ़ना, रारे नू सिहारी लगी है। तू मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में शोक कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत। अगे है ऊंचे से नहीं पढ़ना। इत्थे अक्सर साडे पिंडां जी सारे सज्जन से नहीं प्यारे, इत्थे पाठ है ते। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते, ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी। तुम ते होए तुम ते, इत्थे भी से नहीं है। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुम ही गतनी तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। इत्थे सतगुरां ने से शब्द की वरतों नहीं की, इत्थे महाराज जी ने ते शब्द की वरतों की। ये अखर ते वरत्या। जिहड़ा अरदास लफ्ज है, एक तां जदों गुरबाणी दे अर्थ होणगे मेरे सामने, सच्ची लोग गुरमुख सारे कथा करन वाले बैठे, भाई अंग्रेज सिंह, भाई मेजर सिंह, भाई नवदीत सिंह, चलो जिन्नी जिन्नी किसी नूं बुद्ध है, हर कोई अपने वालों गुरु चरना अरदास करदा। बड़े सूझवान सारे तुसीं सज्जन बैठे, मसरूर साहब बैठे मेरे सामने, क्योंकि जेड़े गुरबाणी अर्थ ने अज तुसीं सारे जानदे हो कथा दा तकरीबन 90% जेड़ा उसी बदल चुका है करन दा तरीका। क्योंकि असी ओ कोई सुनाना चाहते हैं जिस संबंधी बंदा इंटरेस्ट रखता पिया। याद रखियो वो कौम कदी तरक्की नहीं करती जेड़ी किसी बंदे दे इंटरेस्ट नूं रख के भी इहदी सोच की मैं उस अनुसार बोलना। जे एक टीचर ये कहे भी मैं तां ओही पढ़ाऊंगा जो बच्चियां नूं चंगा लगेगा, बच्चियां नूं तां कदी नहीं चंगा लगदा भी 8 घंटे स्कूल च बही। वो तां कहणगे मास्टर जी तुसीं जाओ साडी छुट्टी करो। मेरी फिर ये ध्यान नाल सुणो, असी ओ गल्लां सुन के बड़े खुश हां जिस विच रज के निंदिया हुंदी, जिस विच एक दूजे ते चिक्कड़ सटिया जांदा, ते असी उस नूं ये शब्द कहने आ भी इहदे वर्गा सच किसे नहीं बोलना, ये बड़ा सच बोलदा है। ते मैं तुहानूं एक बेनती करना, जेड़े पिछे ये कहण वाले हुंदे ने बड़ा सच बोलदा है, जदों वक्त आ बनदा सब तो पहला ये बंदे साथ छड़ जांदे। हुण जेड़ा शब्द है पहला सी जेड़े संप्रदायी कथा हुंदियां सन बड़े डूंगे अर्थ सन। ये शब्द जेड़ा है इहदे अर्थ की ने? पहली गल मैनूं पता है कि साडे विद्वान जिहड़ी व्याख्या दी शैली वो बदलदी रही। मसरूर साहब पता है भी गुरु काल वेले होर सी, भाई मनी सिंह वेले होर है, उस तो बाद उदासी निर्मले टकसालां आईयां, उस शैली बदलदी रही। सिंह सभा आई उस वक्त, अजकल विद्वानां दी होर भी शैली बदल गई। जिहड़ा अरदास लफ्ज है, पहली गल तां गुरु ग्रंथ साहिब विच अरदास, अरदासे ते अरदासा ये तकरीबन 3 स्वरूपां च आपां नूं मिलदा है। ते ज्यादा शब्द जिहड़ा ऐड़ा रारा दद्दे नूं कन्ना ते सस्से नूं सिहारी ज्यादा ये मिलदा है। अरदास, अरदासे ते अरदासा थोड़ी जी प्लीज टिका बनाया। जेड़े फारसी दे विद्वान ने वो अपने वालों कहंदे ने भी ये जिहड़ा अरदास शब्द पंजाबी च आ गया है, ਇਹਦਾ मूल फारसी दा है। वो कहंदे लफ्ज है अर्ज दाश्त,
फिर सुनियो, अर्ज दाश। अर्ज का अर्थ हुंदा है बेनती, दाश का अर्थ है रखनी, पेश करनी। वो कहते हैं अरदास का जिहड़ा मूल है ये फारसी विचों है अर्ज दाश, अपने अंदर दी वेदना सामने रखनी। नहीं, ये जिहड़ा शब्द है संस्कृत दा अर्दंग आस, इथों बनया अरदास। पर कमाल दी गल, दोनों दे अर्थ इक्को जिहे ने। अर्ज दाश दा अर्थ है अपने अंदर दी वेदना रखनी, ते संस्कृत वाले कहते हैं अर्दंग आस, एदा मतलब है मंगण दी क्रिया, मंगण दा तरीका। मैं आपनू बेनती करा, भावें नू फारसी वाला समझिए ते भावें नू संस्कृत दा समझिए, लफ्ज सिर्फ बंदे नू अगे तोरन वास्ते हुंदे आ, गल तां सिर्फ अंदर दी खिच ते भावना दी हुंदी है कि बंदे दे अंदर दी भावना की। जिहड़ी अरदास है सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब विचों मैं एक बार अर्ज कीती सी, अरदास कदों तो शुरू हुई। अज असीं कहांगे जी अरदास शुरू हो गई कि प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए चंडी दीवार दी पहली पौड़ी। नहीं भाई जी, असल गुरबाणी मुताबक सानू ढांचा मिल गया, शरीर मिल गया, असीं बोलने हैं, सानू मूँह रब ने दे दिता, ये सारी बनतर बना दी। पर गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक जदों ये साडा स्ट्रक्चर, ये साडी बॉडी दा ढांचा बनना शुरू होया, अरदास जीव ने उदों तो शुरू कर दी। यही कारण मैं इसनूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर सकां। इहदा संबंध कोई मजहब फिरकियां नाल नहीं, ये हिंदू लई है, ये शब्द मुसलमान लई है। जिस दिन साडी इस शरीर दा ढांचा बनना शुरू होया, उस दिन साडे धुर अंदर तो अरदास शुरू हो गई। अरदास दा जन्म साडे जन्म तो पहला दा है। साडा जन्म बाद विच हुंदा है, पहला साडे अंदर अरदास दा जन्म हुंदा। गुरु नानक साहिब जी दा एक बचन है कि पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरभास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। इस तुक नूं सुनियो, खसम सेती अरदास वखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा। मैं सिर्फ दो तुकां तीन लईआं। इहदे अर्थ ने कि पहला पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, रैण दा अर्थ रात, वणजारे दा अर्थ व्यापार करन वाला। गुरु नानक साहिब कहंदे ने ऐ इंसान, तेरी जिंदगी दा पहला पैर, जिवें आ चार पैर दिन चार पैर रात है, इसे तरह महाराज जी ने बाणी च ना जी बंदे दी जिंदगी दी जिन्नी दी उम्र है, इनू चार हिस्सियां विच वंड दिता। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब ने तीन विच वंडिया, बाल जवानी अर बिरध पुन तीन अवस्था जान। इत्थे महाराज ने चार पैर बनाया। पहला पैर बनाया जन्म तो पहला दा, मां दे पेट वाला, मां दे उदर च। दूजा पैर बनाया जन्म तो बाद जवानी दे विचकार वाला, बचपना किशोर अवस्था तक। तीसरा पैर बनाया पर जवानी च, ते चौथा पैर बनाया जदों बंदे दे मौत तो पहला बुढ़ेपा हुंदा। ये चार पैर महाराज ने बनाए। गुरु साहब कहंदे आ पहला पैर है रैण कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरबास, परमात्मा दे हुक्म विच तू मां दे गरबास। इहदा अर्थ कले बड़ी परफेक्ट हुंदी है जदों दोनों वेले दा शरीर मौजूद नहीं हुंदा। जदों जन्म नहीं हुंदा उदों आप अरदास करदा, परिवार दे सामने शरीर नहीं, मां दे उधर भी शरीर है। ते जदों फूक के आपां वापस आ जाने आ, शरीर उदों भी हाज़र नहीं होता, उदों आपां अंतम अरदास कहंदे। दो वेले हजूर ने कहा कि उस वक्त जदों माता दे उदर विच है, उर्दर ते पुठा लटके, उर्द तप करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास वखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा। इस गल नूं गुरमुखो ध्यान नाल सुनियो। गल बड़ी सरल मैं झटके शब्दां च अपना करांगा। उर्द ध्यान लिव लागा। अज भी मैं सोचना असीं पुठे लटक के थोड़ा अरदास करनी, असीं सारे सीधे खलोते हुन्ने, पर
एक गल अरदासिया फिर भी कहता भी काम करियो, अरदास सीधे ते खलोते हो पर ध्यान जरूर रखिया जाए। फिर सुनो कड्डी डूंगी गल कीती महाराज ने। उर्द ध्यान लिव लागा, अरदास ध्यान दा नाम है, अरदास एकाग्रता दा नाम है। उर्द ध्यान लिव लागा। ते अज जदों असीं अरदास करने आ, मैं एक बार कहा सानू चुप खलोतियां नूं भाई साहब कोई भी अरदास करे वो आवाज दे के कहंदा साध संगत दी ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू, वो साडा ध्यान धरा रहा। अरदास ध्यान दा विशा, उर्द ध्यान लिव लागा। मैं अर्ज करांगा ते सब तो पहला अरदास असीं अपनी सारे करके आए। फर्क इन्ना जन्म तो पहला अरदास मां ने नहीं कीती, प्यो ने नहीं कीती। ठीक है भी किसी घर संतान होवे ये कहंदा परमात्मा नूं पुत्र देई धी देई, ये तां करदा, पर खिन खिन थोड़ा करदा। खिन खिन अरदास ते सिमरन केवल जीव करदा है। इनू फिर सुनो, ऐस जन्म च जे खिन खिन बंदगी करी जाए, मरण तो बाद मैनू बख्श दिया जे भावें ना भी पिंड वाले भोग पान चेते रखे, ओदी फिर भी सुनी जानी है, क्योंकि अपनी अरदास उन्हें खुद कर ली। ये तो साडी मर्यादा है ना जी, भी बंदे दी जिंदगी दा चैप्टर क्लोज हो गया। अरदास मैं बेनती की दो तीन गल्लां, क्योंकि भाई साहब ने शब्दे पढ़े जन्म तो पहला। फिर अगली गल, सानू लोड़ थोड़ होवे असी गुरु तो कोल अरदास करना, परमात्मा कोल करना। हुण जेड़े जो शब्द पढ़े, प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साईं। दूजा शब्द भाई साहब ने भाई जी ने पढ़िया, जी की बिरता होए सो गुर पे अरदास कर। पहला प्रभ पास ते हुण गुर कोल। जदों आनंद कारज हुंदा है, इहदी शुरुआत इत्थों हुंदी है, कीता लोड़िया कम सो हर पे आखिए। हर पे आखिए ना, वाह वाह कमाल की भाई साहब ने दोनों शब्दां दी तरतीब सी। आखना खरी नूं में ते महाराज कहंदे मैनू ते हरी दिसदा ही नहीं। सो हर पे आखिए, जे तेनू नहीं दिसदा कारज दे सवार सतगुरु साखी। तू अपने सतगुरु नूं अपने अंदर दी वेदना दस। गुरु चरना च अरदास मैं एक बार अर्ज कीती सी जी, एक बहुत सूझवान विद्वान सन पटियाला यूनिवर्सिटी नवरत्न कपूर पुणे दे सन, मेरा घर चलाना कर गए ने पिछले दिन। उन्होंने अरदास के संबंध में डॉक्टर नेकी चले गए जी। साडे जेडे बंदे लिटरेचर नाल संबंधित उन्होंने पता है, पर जेडे लिटरेचर नाल नहीं संबंधित उन्होंने गाउण वालियां दा सारियां दा पता है। आपो अपना फील्ड है ना जी। मैनू पता, मैं डॉक्टर नेकी का नाम लिया, कई कहना पता कि नेकी नेकी गल्लां करी जांदा सी। हुणे किसी गायक का नाम लै दो, सारियां दे कंन खड़े हो जांदे। आपो अपना फील्ड हुंदा जी। डॉक्टर नेकी ने अरदास विच उन्हां नूं कोट कीता, उन्हां दे इस अर्थ नूं। वो कहंदे आ कि अरदास मैं पता मैनू मैं बड़ी बड़ी दे अर्थ कीते ने, मैं अज फिर रिपीट कर लगा। अरदास चार अखरां दा जोड़ है, ऐड़ा रारा दद्दा ते सस्सा। वो कहंदे ने चारे अखरां तो परमात्मा दा एक एक गुण दस्या अरदास विच। पहला है ऐड़ा, ऐड़े दा अर्थ शब्द बनाया अंतरजामी। दूसरा अखर है रारा, रारे तो शब्द बनाया रखवाला। तीसरा अखर है दद्दा, दद्दे तो शब्द बनाया दाता। ते चौथा अखर है सस्सा, ते सस्से तो शब्द बनाया सहारा। चार अखर ऐड़ा रारा दद्दा ते सस्सा। फिर सुनियो, मेरा ख्याल है अरदास शब्द कहंदे तिन्ने गल्लां चारे हो जांदियां। ऐड़ा दा अर्थ मैं शब्द वरते जी अंतरजामी। एदा मतलब ये वे कि तू अपने अंदर दी भावें जबान तो कुछ भी ना बोले। चलो असी बोल के अरदास करने, फलाने ने आ कीता फलाने ने, पर प्यारिओ इस झगड़े च नहीं पैना चाहिदा। जदों अरदासिया की अरदासिया तां बाद विच बोलदा है, जदों आप जी अपने घरों फुरना ख्याल बना के चलदे हो ना, सच ये वे कि ना भी कोई बोल के संगत विच कहे अरदास तां ही सुनी जाती है, क्योंकि वो अंतरजामी घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान। ऐड़े अखर तो मैं बेनती की शब्द कहे अंतरजामी।
ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਰਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਰਾਰਾ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਖਾ। परमात्मा अंतरजामी भी है और रखवाला है। उन्हें भाई साहब ने पढ़िया राखा शब्द। तीसरा मैं बेनती की अखर है दद्दा, दद्दे दा अर्थ है दाता देने वाला, ते सस्से दा अर्थ है सहारा देने वाला। सच ए वे रब राखा भी है, रब दाता भी है, ते रब सहारा भी देंदा है। ते सच ए कि मां दे उदर विच ही तिन्ने कृपा कर देंदा। उथे रखदा मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे, वो राखा है। दूजी गल मैं कीती दाता। महाराज ने एक शब्द वरत्या, और की बात कहां कह तो सो पेटी के पट बीच बचावे। प्यारियो, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिय। मनो क्यों विसारिय? एवड़ दाता, राखा भी, दाता भी। ते मैं एक बेनती होर करांगा। बाणी च एक शब्द हुंदा है, दी कथा भी आपां इत्थे कीती सी। महाराज ने कहा, इंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिश त्यागै। ऊपर चरण तले आकाश, घट में कीनो सिंध प्रगाश। एडी वड्डी रखिया करदा है कि ये निक्का जिहा जीव शब्द वरता मास दा लोथड़ा, इहदी रोज झिल्ली बदली जांदी। जे मेडिकल साइंस जिवें माइयां कपड़े बदलदियां ने, उस पानी च कड़ी मां है कि जिहड़ी इहदे उपर बॉडी ते आए झिल्ली बदलदी पई है, वो रखवाला केवल परमात्मा है। अगली बेनती, अरदास पैसे दा विषय नहीं। जिवें चलो अजकल साडे है जी ये अरदास भेटा जे गुरमुखो, जे रुपइया नाल अरदास भेटा दे के कम सौरदा हुंदा ते सारे अमीर बंदे कोई भी दुखी ना हुंदा, डॉक्टरां दे कोई ना जांदा। गुरु जी कहंदे आ ये भेटा ग्रंथी भाई प्रचारक दी पेट रोजी दा साधन है। ये रब दे दर ते नहीं चलना, ये तां कागज जां ये मैटल बंदे ने जिंदगी जीण वास्ते बनाया, उहदे दर ते दी की अहमियत है। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਿੰਧ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, बहुत प्यार करता। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ 750 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਪੂਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਟੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਬੇ ਵਗਦੇ ਆ, ਪੈਲੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, रुख दी शान नहीं बदली, वो अजे भी रुख है उसे तरह फैलिया। ते तंबू साहब ओनू कहंदे जिथे महाराज सच्चा सौदा करके आके रुक गए। हजूर दी बाल लीला पट्टी साहब। मैं खैर जिहड़ी बेनती करा
कि मालजी साहब जदों सतगुरु दे पवित्र स्वरूप तो हजूर दे छां नहीं हटी। सारे जाने सारे रुख दी छां हट गईयां, पर हजूर दे मुख उत्ते जिहड़ी वो रुख दी छां सी उसे तरह हुण ते बनदा रुख जी डिग चुका है। पर दूजी सप ने छां कीती। राय बुलार ने लंघदा पिया सी, घोड़े च देखिया, उन्हें एक दिन रुख दी छां देखी, दूसरे दिन उन्हें देखा भी कोई दिन बाद सप ने छां की, उत्थे बकायदा लिखिया होया है, मेरे वर्गा इत्थे कथा करदा ना मन्ने, साडे ना मन्नण नाल ओ घटना ने मिट नहीं जाना। ओ वापरी। उन्हें तीन गल्लां देखियां जी राय बुलार ने। पहली गल सर्प छां, दूसरी रुख दी छां, ते तीजा गुरुद्वारा क्यारा साहब खेत हरा होना। तिन्ने थावां मौजूद ने। किन्ना दुख लगदा है, साडे पूर्वजां ने बजुर्गां ने बनाईयां ने, ते इत्थे जम्मिया विद्वान माइक पढ़दा नहीं जी, तां ब्राह्मणां ने कीता होना, ये सब कुछ उन्हां कीता होना। मेरा ख्याल इन्ना बंदा राक्षस तो नहीं डरदा जिन्ना प्रचारक ब्राह्मण तो डरी जा रहा। एक तरीका है ना जी। हुण देखो, ते पहले दिन जदों मैं तिन्ने घटनावां अपना साझियां करना, जिस वक्त हजूर मझां चारदे आ, गुरु साहब के जन्म स्थान तो काफी दूर है गुरुद्वारा क्यारा साहब। हजूर आराम पे करते ते मझां हुण तां चलो वसो हो गई, सारा ननकाना सब वस गया, मझां खेत च पैंदियां ने। भट्टी जिमीदार हुंदा है, वो जदों रौला पान लगदा है ते हजूर उठदे आ ते महाराज एक शब्द कहंदा, वो कहंदा तुसां मेरा खेत उजाड़ दिता, मैं फरियादी होवांगा। महाराज दे बचन सुनने वाले पुरातन जन्म साखी च महाराज कहंदे ने, भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया। इन्हां लफ्जां च ये लफ्ज किसी आम बंदे दे नहीं। भाई वे लफ्ज दी वरतों गुरु नानक साहब बड़ी करदे सन। जिवें जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे लालो। भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया। की होया जे किसे मई ने मुंह मार दिता। आप शब्द समझने की होया जे किसे मझ ने मुंह मार दिता। भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया। की होया जे किसे मई ने मुंह मार दिता। खुदा इसे विच बरकत कत सी। वेखो शब्द की, खुदा इसे विच बरकत कत सी। इहदा मतलब तू रौला ना पा। जे किसे मझ ने चार बुरक मार दिते, क्यों रौला पाई जाने? रब बरकत पाण ते आवे ते थोड़ियां विच भी बहुत कोई पा दिंदा। खुदाए इसे विच बरकत कत सी, पर वो बंदे नूं सबर नहीं आया। वो जा फरियादी होया। राय बुलार ने अपने आदमी भेजे, सचमुच उत्थे कुछ नहीं सी उजड़िया। मैं फिर बेनती करा कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, मैं हर थां इक्को गल की कही है, वो सिखो। एक गल याद रखियो, गुरु नानक नूं रब कहण तो बिना साडे तो बाणी दे अर्थ हो ही नहीं सकदे। भाई गुरदास साहब ने लिखिया है, भाई साहब लिख दिया, निरंकार नानक देव है। निरंकार आकार बनाया। महाराज कहते तेरा कुछ नहीं उजड़िया, खुदा बरकत पाएगा। वापस आया, खेत हरा परा। उन्हें फिर राय ने कहा तू तो शिकायत की। वो कहता पता नहीं, मैं सच कहना खेत उजड़िया सी। नहीं प्यारिओ, जिथे गुरु नानक दी नजर पै जाए उथे तां उजड़े भी वस जांदे हुंदे। राय बुलार दे अंदर गल बह गई भी कुछ है। देखो दूसरी बारी जदों सप ने छां कीती, तीसरी मैं बेनती की जदों रुख दी छां नहीं फिरी। राय बुलार दे लफ्ज सुनने वाले ने ये आप घर आए। घर आके राय बुलार ने सब कुछ देख के घर आके बुला लिया बाबा कालू साहब जी। जेड़े शब्द कहे सुनने वाले ने जन्म साखी च ने जी। बाबे कालू दे मानसी पिता जी दे पता नहीं अज नानक ने की कर दिता होने।
उस दिन मज्झां ने शिकायत हो गई, उजाड़ दिता। जदों आया राय बुलार ने बाबा कालू साहब जी का उठ के सन्मान किया। जिहड़े शब्द कहे वो ये सन, कालू देखी नानक नूं किते फिट मारना कहीं। तू प्यो है ना, मता नानक दे मूंह नूं किते अपनी जबान तो फिट मारना बोली, भैड़ा ना बोली। मता नानक नूं फिट मारना कहीं। अगले शब्द की क्या, ए महापुरख है, ये शब्द कह, ए महापुरख है, तू धन कह तेरा पुत्र बन के आया, मैं धनता जोगा मेरे शहर च आया है। ते अगले शब्द कह लगा, इनू कदी माड़ा ना बोली, नानक करके मेरा शहर वसदा। मैं बेनती करा उस बंदे दी आस्था है नहीं। ते जदों महाराज तलवंडी तो सुल्तानपुर तुरे, गल आपां अरदास दी कर रहे, राय बुलार बजुर्ग से ये विद्या करने वास्ते आए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों विद्या कीता ते इन्हें एक बेनती की, महाराज जी नूं कहंदा मेरे लिए हुक्म की है। उत्थे गुरु जी का बचन सुनने वाला है, कहंदे ने राय बुलार नूं तुहाडे कोल सल्तनत सुख सब कुछ अल्लाह रब दा दिता है। जदों अपनी ताकत, अपनी सियाणप, अपनी अकल, अपना जोर, अपनी पदवी, अपना पैसा कुछ भी काम ना दे, सारियां ताकतां टुट जान, रब अगे अरदास करो इदू वड्डी ताकत कोई नहीं। महाराज ने यह शब्द कह कि उदों परमात्मा दे सन्मुख अरदास करे। राय बुलार ने इस गल नूं पल्ले बन के रखिया। मेरे कहन तो मुराद कि अरदास गुरु घर विच इहदी बड़ी वड्डी महानता है। ते गुरु साहब ने पुरानियां उदाहरणां भी बाणी विच दित्तियां कि सच जदों हर ताकत बंदे दा साथ छड़ जाए, हर ताकत, उदों अरदास बंदे दा साथ नहीं जे छड़। अरदास सुनियो मेरी बेनती ध्यान नाल। पिछले दिन मैं एक गल कीती, ज्यों ज्यों बंदा जिंदगी च विचरदा है बहुत कुछ तजर्बे हुंदे आ। हर ठोकर जिंदगी विच नवां सबक दे के जांदी है। मैं एक गल कीती सी, सच जे आप जी नूं सुख रब ने दिता है, तुसी किसे नाल भी अपने अंदर दा सुख साझा कर लो, भावें जिन्ना मर्जी खून दा रिश्ता नेड़े दा, जिन्ना मर्जी मित्र है, जे अपना सुख साझा करोगे ते ईर्खा दे शिकार हो जाओगे। बंदे ईर्खा कर लग पैणगे। सुख साझा करांगे समाज नाल, सचमुच ईर्खा दे शिकार होवांगे। दुख साझा करांगे ते हासे दा शिकार हो जाएंगे। दुख दसो ते लोकी मजाक उड़ांदे आ, टिचरां करदे ने, ते सुख दसो ते लोकी ईर्खा करदे आ। इसे करके गुरु रामदास कहंदा है कि मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही जिस पे करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मेरा दुख ते सुख तेरे कोल। एक दो बेनतियां करके कि देखो जदों कुछ भी ताकत ना रहे फिर बंदा की करे। मैं कई बार सोचना भी शरीर चला जाता है, परिवार का जी तुर जाता है, वो तो उठ के आके नहीं कहता मेरे लिए अरदास करो। पर यदा मतलब जिसका वजूद खत्म हो चुका है, जिसकी होंद खत्म हो चुकी है, बाद विच ओहदे लिए अरदास की जाए तो रब की दरगाह विच ओ सुनी जाती है। फिर सुनो, जिहदा शरीर ही मुक गया ओहदे लई अरदास की जाए तो सुनी जाती है, ते जिहड़ा शरीर विच रह के अपनी अरदास करदा रब क्यों नहीं सुनेगा? उदों तां वजूद ही कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब का यह बचन है, दोहरा, एक ही दोहरा पूरे गुरु ग्रंथ साहब जिहदा हाइडिंग दोहरा वो है, बल छुटकियो बंधन परे कछु ना हो तू पाए। एक है अरदास, इहदी शक्ति बल होवा। महाराज कहते बल छुटकियो, ताकत चली गई,
इत्थे गुरुदेव ने भावें उदाहरण तेंदुए दी दित्ती, ग्रसिया होया, पर मैं कहूँगा बल छुटकिओ दे अर्थ अपनी जिंदगी च बंदा लाए। बल एक तरह का नहीं हुंदा, पैसा भी बल हुंदा है, पदवी भी बल हुंदी है, विधवता भी बल हुंदी है, परिवार दे कौड़मे दा वड्डापन होना यह भी बल हुंदी है। महाराज कहते जो सारे ही बल मुक गए, ना सियाणप रहे, ना विद्या रहे, ना पैसा रहे, ना परिवार रहे, इत्थों तक कि शरीर की ताकत भी जवाब दे गए। बल छुटकिओ बंधन परे, सुरत नूं बंधन पै जाए, हर रोज नवी तो नवी खबर सुनने नूं मिले। बल छुटकिओ बंधन परे, कछु ना हो तू पाए। ते समाज भी जिन्ने लोग जिउंदे ने सारे कहण भी हुण तेरा कोई चारा नहीं, तू बच नहीं सकदा, कछु ना हो तू पाए। अगे वेखो बड़ा वड्डा धरवास जी अरदास दा, बल छुटकिओ बंधन परे, कछु ना हो तू पाए। कहो नानक अब ओट हार, जी की बिरता होए सो गुर पै अरदास कर। कहो नानक अब ओट हार, गज जू हो सहाय, जिवें हाथी दी मद कीती। अगला बचन महाराज फिर कहंदे उस अरदास च ताकत की आई। ये लफ्ज फिर ध्यान में सुनियो, बल छुटकिओ बंधन परे, कछु ना हो तू पाए। चलो वो तो पुरानी घटना ना हाथी वाली। फिर अगे महाराज कहते बल होवा, हुण की हो गया? पहली तो किते तुसी कह रहे हो बल छुटकिओ, एडी वड्डी अरदास च करामात। बल होवा बंधन छुटे, ओ ते सी बल छुटकिओ बंधन परे। बल होवा बंधन छुटे, उथे सी कछु ना हो तू पाए। इत्थे गुरु कहंदा जदों सिद्धि पैण लग पए उदों सब कुछ हो तू पाए। ये अरदास शाकत है। बल होवा बंधन छुटे, सब कुछ हो तू पाए। नानक सब की तुमरे हाथ में, तुम्हें होत सहाय। परमात्मा सब कुछ तेरे हाथ विच है, तू चाहे ता तू पुकार सुन ले, तू एक खिन भी सब कुछ पलट के रख देना। मैं आप बेनती करा, भाई साहब ने दो शब्द तां पढ़े अज अरदास दे। दूजी गल गुरु घर अज भी अरदास, मैं फिर तुहानू बेनती करांगा, अपना काम है पुकारना। जे नहीं सुनिया जाता इहदे प्रति कदी फुरना नहीं बनाना भी तू साडी सुनी क्यों। मैं पिछले सालां च कहा बेबे नानकी दे घर संतान नहीं सी, सब नूं पता औलाद कोई नहीं, पर हिस्टरी च किते नहीं पढ़िया। अज बोलन लग पे साडे विद्वान भी बेबे नानकी नूं क्यों ना संतान देती। अज पूरा जोर इस गल ते लगा भी गुरु नानक दी जोत नूं इस तरह तोड़ दो जिवें आप बंदा तुरिया फिरदा। यही जोर है ना। साडे वर्गे सन जी, साडे वर्गे सन, आपां तां वासना दे गंद च भरे आ, गुरु दे पद्धर नूं अपने ते मत ले। बेबे नानकी ने कदी कहा जी मेरे घर औलाद नहीं। मैं आपनूं कहा सी सिर्फ इक्को वारी उन्हें मंगिया। जदों सुल्तानपुर जाने बेबा जी दा घर देखो, घर दे थल्ले भी एक बहुत सोहना ठंडा कमरा बनिया जिहड़ा अपनी भरजाई माता सुलखणी वास्ते बनाया सी। सर्दियां विच गर्म ते गर्मियां विच ठंडा रहिंदा सी। कुछ नहीं मंगिया, सिर्फ इक्को चीज मंगी अपनी जिंदगी च। आपनूं पता होवे जदों महाराज 1518 नूं हुंदे आ ते इक्को गल कही सी बेबे ने, रात प्रशादा छकाया, वचन बलास होए, यही क्या सी वीरा कि हुण छेती जायो ना, मैं शरीर छड्ड जाना ते मैनू अपने हत्थी तुसी संस्कार करिया। सिर्फ इक्को चीज मंगी हो। मैं फिर आपनूं बेनती करांगा कि अरदास अपना काम है पुकारना, सुनना ना सुनना ओदा काम है। ते जे ना सुने आपां कहिए तैनूं नहीं मनदे की फर्क पै जाएगा, ओदियां वोटां थोड़ा घट जाणियां, ओदी खोंद इस तरह है। मैं एक अरदास कीती जी, अरदास लई गुरु हरराय साहब जिन्हां दा अज आगमन पुरब है, उन्हां वेले भी बड़ियां अरदासां होईयां, सुरत नाल भी होईयां, बाहर मुखी भी होईयां। काबल दी धरती ते बैठा भाई गोविंदा वो जप दा पाठ करदा है,
ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਪ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਤਾਬੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਣਗੀ ਮਾਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। मैं बेनती करा मसरूर साहब उत्ते आ जा भी आप शुरू करने टाइम बचावांगे।